Hello everyone. We'll continue from yesterday's lecture. What we did yesterday we started with your five kingdomic classification, where we classified organisms into kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. In this five kingdomic classification, yesterday we were done with kingdom Plantae, where we totally discussed kingdom Plantae, as well as we also classified kingdom Plantae. If you remember, plants were differentiated into cryptogam and phanerogam, and later on they were also subdivided. Then moving from kingdom Plantae, we move to the last kingdom, that was kingdom Animalia. Today we'll continue from that specific topic, that is kingdom Animalia. If you remember, yesterday we discussed about properties of kingdom Animalia as well as their characteristics. What we are going to discuss today is classification of kingdom Animalia. In MPPSC syllabus, it has been already mentioned regarding classification of plant and animals. So that's why classification of kingdom Animalia is important for us. Let's continue. Classification of kingdom Animalia. When you're talking about kingdom Animalia gets subdivided into almost 35 phyla. Remember the classification series given by Carl Linnaeus? Organisms are divided into kingdom, then after kingdom it is phylum. Phylum is for animals, for plant we call it as division. Then after phylum it is class, then order, then family, then genus. There is a spelling mistake, it is genus, and last one is species. Okay, so kingdom Animalia is divided into 35 phylum. But remember this, there are 35 phylum, but can we study all these 35 phylum? It is not possible for us. So what we are going to do is, we are going to concentrate on the phylum in which we humans belong to, because MPPSC gives impetus to human biology. So what you're going to study about is, we'll study about the phylum in which human exists. So out of this 35 phyla, the most important phyla or phylum is phylum Chordate, because humans are present in this specific phylum. So what is unique about this phylum Chordate? Let's have a look towards the characteristics. Phylum Chordates are characterized by presence of notochord. That means any organism that has a notochord, it can be considered as an individual of phylum Chordate. Organisms with notochord are called as chordates, and organisms without notochord are considered as non-chordates. Now in the specific slide, a 3-marker question comes over here. That question is, what is a notochord, as well as human belong to which phyla? Human belongs to phylum Chordate. Next we'll move on. Over here we discussed phylum Chordate has notochord. So what is this notochord? We'll study about it. Okay, so what is notochord? Notochord is a rod-like structure which provides rigid support. Specifically, अगर हम आसान भाषा में इसकी बात करें, नोटोकॉर्ड क्या है? बैकबोन का प्रिकर्सर है. मतलब बैकबोन जब बन रही होती है, हमारी जो बैकबोन है एम्ब्रियोनिक स्टेज में बननी शुरू होती है, डेवलप होनी शुरू होती है. तो जब बैकबोन नहीं बनी हुई थी, उससे पहले एक प्रिकर्सर की तरह ये काम करता है. तो देखते हैं, द नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स रिजिड सपोर्ट. इट अपीयर्स इन एम्ब्रियोज and later on evolves into vertebral column और backbone. तो ये एम्ब्रियो में एम्ब्रियो में ग्रो करता है, फिर लेटर ऑन ये क्या होता है? इवॉल्व हो जाता है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में. वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या है? वर्टिब्रल कॉलम का यहाँ पे मतलब रहेगा बैकबोन. सो नोटोकॉर्ड क्या है? Notochord is a rod-like structure which is responsible for presence in embryos and later on it evolves into vertebral column. Vertebral column का काम क्या है? ये backbone और tail portion बनाने में help करता है. Have a look around. यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये आपको ये जो structure दिख जाएगा,
ये जो एम्ब्रियो, ये ह्यूमन का एम्ब्रियो, ये जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज योर नोटोकॉर्ड। ये जब एम्ब्रियो धीरे धीरे इवॉल्व होगा, ये ह्यूमन का था, ये चिकन का है, ये टॉर्टोइस का है, सब में आपको नोटोकॉर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। ये सैलमेंडर में, जो कि एक एम्फीबियन है, और ये फिश के बॉडी में भी आपको ये दिख जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये क्या है, नोटोकॉर्ड है। जब ये एम्ब्रियो इवॉल्व होने लगती है तो ये नोटोकॉर्ड धीरे धीरे क्या होती है, इवॉल्व हो जाती है। ह्यूमन के केस, ह्यूमन और बाकी ऑर्गेनिज्म के केस में क्या बन जाएगा, बैकबोन बन जाएगा प्लस टेल भी बन जाएगा। या आपको ये जो एरिया दिख जाएगा, इस एरिया में भी नोटोकॉर्ड मौजूद है, ये टेल बन गया है यहाँ पे। फिर जैसे जैसे बेबी इवॉल्व होता चला जाएगा, ऑफस्प्रिंग इवॉल्व होता चला जाएगा, नोटोकॉर्ड में चेंजेस आते हैं। जैसे कि फिश में अगर देखें, ये टेल बन गया है, सैलमेंडर में ये टेल बन गया है, टॉर्टोइस में भी ये टेल बन गया है, चिकन में भी ये जो पोर्शन आपको दिख जाएगा यहाँ पे, पॉइंटेड पोर्शन, टेल लाइक पोर्शन, यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड मौजूद। लेकिन जब हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन केस में ये होता है, जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, बॉडी के अंदर ही सिकुड़ जाता है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन में कन्वर्ट होता है, ये हमारे बैकबोन में ही सिकुड़ कर रह जाता है यहाँ तक। तो अगर हम बात करें नोटोकॉर्ड की, नोटोकॉर्ड का काम क्या है, ये आगे चल के बैकबोन और टेल बनाता है, लेकिन सब में नहीं बनाएगा। जैसे ह्यूमन के केस में हमारी बॉडी में टेल नहीं है, तो हमारे केस में ये खाली बैकबोन बनाता है, लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म के केस में क्या बनाता है, ये टेल और बैकबोन बनाने में हेल्प करता है। तो नोटोकॉर्ड को मैं 3 मार्क का मार्क करें। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स रिजिड सपोर्ट। इसके अलावा it appears in embryos and later on evolves into vertebral column. Notochords are only found in phylum Chordate, क्योंकि phylum Chordate की खासियत थी, हमने अभी पढ़ा था, phylum Chordate are characterized by notochord, a group of animals that includes humans। आपको यहाँ पे दिख जाएगा ह्यूमन एम्ब्रियो, वो इवॉल्व हो रहा है ह्यूमन बेबी में, और ये नोटोकॉर्ड धीरे धीरे श्रिंक होते हुए खाली बैकबोन तक ही सीमित हो जाती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, हमने बात कर ली है फाइलम कॉर्डेट के बारे में। कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, नोटोकॉर्ड। अब जब हम बात करते हैं फाइलम कॉर्डेट की, फाइलम कॉर्डेट आगे चल के और सब डिवाइड हो जाती है। सब डिवाइड हो जाती है कितनी कैटेगरीज में, 2 सब फाइलम में। नॉर्मली हम किंगडम के बाद फाइलम में आते हैं, फाइलम के बाद हमें क्लास में जाना चाहिए, बट एनिमेलिया में थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है। एनिमेलिया में होता ही है, किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद फिर सब फाइलम आता है, फिर सब फाइलम के बाद आएगा क्लास। तो एनीवेज, फाइलम कॉर्डेट जो है ये डिवाइड हो जाता है 2 सब फाइलम में। कौन कौन से सब फाइलम है? सब फाइलम वर्टिब्रेट एंड सब फाइलम इनवर्टिब्रेट। एक एक करके डील करते हैं। पहले बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है? दीज आर ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन और बोनी स्केलेटन। ये वो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी में बैकबोन नहीं है या फिर कोई स्केलेटन वगैरह मौजूद नहीं है। दुनिया में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 99% ऑफ एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट्स इन नेचर। देखते हैं एग्जांपल्स, अर्थवर्म, लीच, स्टारफिश। अगेन स्टारफिश इज नॉट अ फिश। स्नेल, स्क्विड, स्पाइडर्स, क्रैब, इनके बॉडी में बैकबोन नहीं है, तो ये क्या है? इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट आपके लिए 3 मार्कर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस ये आपके लिए क्या है? प्री के लिए भी, एग्जांपल प्री क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनवर्टिब्रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवर्टिब्रेट, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा सब फाइलम वर्टिब्रेट। सब फाइलम वर्टिब्रेट की खासियत क्या है? वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन। जिन ऑर्गेनिजम्स में बैकबोन मौजूद है हम उसे कहते हैं वर्टिब्रेट। दे आर द मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। जैसे कि हम, क्योंकि हमारी बॉडी में बैकबोन है, सो वी आर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट अगेन 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे लिए प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहे। तो एनीवेज, एनिमेलिया डिवाइड हुई थी 35 फाइला में, जिसमें से इंपॉर्टेंट था कॉर्डेट। फाइलम कॉर्डेट फिर डिवाइड हुई थी 2 कैटेगरीज में, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। हम किस में बिलोंग करते हैं? हम बिलोंग करते हैं वर्टिब्रेट में। अब आगे बढ़ेंगे। ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेट है ये आगे चल के सब डिवाइड हो जाती है।
बात करी थी ना, किंगडम के बाद आएगा फाइलम, फाइलम के बाद आएगा क्लास, तो अब उसी पे आ रहे हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेट गेट्स फर्दर सबडिवाइडेड इनटू क्लासेस। टू बी स्पेसिफिक, यहाँ पे 5 क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिशेस, दैट इज फिश, एम्फीबियंस जैसे कि टोड, फ्रॉग लाइक स्ट्रक्चर, रेप्टिलियंस या फिर रेप्टाइल्स, एव्स, बर्ड्स, एंड लास्ट वन इज मैमेलिया या फिर मैमल्स। तो जो सब फाइलम वर्टिब्रेट है कितने सब ग्रुप में डिवाइड हो जाती है? 5 सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? क्लासेस। फाइलम के बाद क्लास। सो फाइलम chordate divides into 35 phyla and phylum chordate gets subdivided into subphylum vertebrate, invertebrate, and subphylum vertebrate gets divided into 5 classes: fishes, amphibians, reptiles, aves, and mammals. Now we are going to deal with individual classes. So first class that we are going to deal with is class fishes. जब हम बात करते हैं क्लास फिशेस की, हम यहाँ पे किस ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे? We will be talking about fish. देखते हैं, these are mostly aquatic in nature. Mostly इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ फिशेस हैं जो टेम्परेरीली जमीन पे भी रह सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे टर्म मोस्टली एक्वेटिक, वरना ज्यादातर क्या है, सारी की सारी फिशेस एक्वेटिक इन नेचर ही होती हैं। साथ ही साथ दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये जो आपको ये जो शेप दिख रहा होगा, ये जो शेप है, इस टाइप के शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर से क्या फायदा मिलता है? स्विम करने में, पानी में तैरने में इनको आसानी मिलती है। सो फिशेज आर एक्वेटिक इन नेचर एंड हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। साथ ही साथ उनकी बॉडी की चारों तरफ एक कार्टिलेज, एक फ्लेक्सिबल एंडोस्केलेटन भी मौजूद है स्केल्स के तौर पे। फिश अगर आपने देखी होगी तो फिश के चारों तरफ बॉडी के बाहर स्केल्स मौजूद हैं। इन्हीं स्केल्स को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे लिए एक प्री क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, फिश माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। वेंट्रली का मतलब है पेट वाला जो साइड होता है उसे हम कहते हैं वेंट्रल लोकेशन। आपको यहाँ पे इस फिश पे दिख जाएगा। फिश को अगर हम इक्वल हाफ में अगर हम डिवाइड कर दें, ये जो ऊपर वाला जो पीठ वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं डोर्सल, और ये जो पेट वाला जो साइड है इसे हम कहते हैं वेंट्रल। तो जब हम फिश के माउथ की बात करते हैं, फिश का माउथ क्या है? वेंट्रली लोकेटेड है, पेट वाले साइड पे मौजूद है। नेक्स्ट, नोटोकॉर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। आपको दिख जाएगा फिश के बॉडी में टेल लाइफ लॉन्ग मौजूद रहता है। सो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। नेक्स्ट, फिश हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। जैसे हम ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमन के केस में क्या है? ह्यूमंस हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। सिमिलरली फिशेस हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, खाली नंबर का अंतर है। साथ ही साथ दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है? कोल्ड ब्लड का मतलब है जो ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें कहते हैं वार्म, कोल्ड ब्लडेड। और जो ऑर्गेनिज्म अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकता है, हम उसे कहते हैं वार्म ब्लडेड। एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड इन नेचर। एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमन का ही ले लेंगे। जैसे ही गर्मी होती है हमें पसीना आता है कि नहीं, लेकिन जैसे ही पसीना आएगा आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपकी जो स्किन है थोड़ी सी चिलिंग इफेक्ट फील होती है, ठंडी होती है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। दैट मीन्स गर्मी में हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा कूल डाउन कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। सिमिलरली विंटर की अगर हम बात करें, सर्दियों की बात करें, जैसे हमें ठंड लगने लगती है हम शिवर करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। इसका रीजन क्या है? शिवरिंग का रीजन क्या है? हमारी जो बॉडी के मसल्स हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, आपस में फ्रिक्शन कर रही हैं। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। दैट मीन्स बाहर, बॉडी के बाहर टेम्परेचर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम होने की वजह से हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं आपस में रगड़ खाती हैं, फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होता है, हमारी बॉडी में गर्मी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से हम क्या करें, बॉडी का टेम्परेचर चेंज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकता है उसे हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। लेकिन अगर हम फिश की बात करें, फिश आर कोल्ड ब्लडेड, ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट,
दे हैव फिन्स फॉर लोकोमोशन। आपको ये दिख जाएगा, ये जो यहाँ पे उनके पीठ पे जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं फिन्स। ये पीठ पे जो फिन है उन्हें हम कहते हैं डॉर्सल फिन, जो पेट वाले साइड पे जो फिन है उन्हें हम कहते हैं वेंट्रल फिन, और ये जो मौजूद है टेल, इसे हम कहते हैं टेल फिन। सो दे हैव फिन्स फॉर लोकोमोशन। दे रेस्पायर विथ हेल्प ऑफ लंग्स। ये फिश में आपको ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख जाएगा सारे फिशेस में, ये स्ट्रक्चर गिल स्लिट्स कही जाती है और इसी के अंदर गिल्स होती है, यहाँ पे वो रेस्पायर करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस लंग्स के सहारे रेस्पायर करते हैं, फिशेस रेस्पायर विथ हेल्प ऑफ गिल्स। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इसका मीनिंग ये है कि फिश पहले अंडे देती है, फीमेल फिश अंडे दे देती है, बॉडी के बाहर रिलीज कर देती है, फिर मेल फिश आके क्या करता है, इनके ऊपर अपना मेल गैमेट स्प्रे करता है, स्पर्म जिसे हम कहते हैं स्प्रे करता है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन है ये बॉडी के बाहर होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख जाएंगे, कैटला, रोहू, मृगल, उसके अलावा सी बैस, ग्रे मलेट, मिल्क फिश, कुछ यहाँ पे फ्रेश वाटर टाइप है, कुछ यहाँ पे मरीन टाइप भी हैं। ठीक, एग्जाम्पल्स को हमें याद रखना है। क्लास स्पीसीज 3 मार्कर, 5 मार्कर और प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्लास एम्फीबियंस। एम्फीबिया जो टर्म है इसका मतलब है ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी पे भी रह सकते हैं। एम्फीबियस, बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। देखते हैं एम्फीबियंस, दे कैन लिव बोथ इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। पानी में भी पाए जाते हैं, जमीन पे भी पाए जाते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। 2 हाथ पैर हैं, जोड़ी में है, 2 हैंड्स 2 लेग्स। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। जैसे हमारी बॉडी की बात करें, हेड और ट्रंक, सर और धड़ के बीच में गले का एक पोर्शन आ जाता है, नैरो पाथ आ जाता है। लेकिन जब हम एम्फीबियंस की बात करें, सर है, धड़ है, सब कुछ है, लेकिन गले वाला जो पोर्शन है, नैरो एरिया, वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। हमारे केस में क्या, हेड और जो चेस्ट रीजन के बीच में नेक है ना, तो डिफरेंशिएशन की तरह काम करता है, लेकिन इनके केस में ऐसा है ही नहीं। सो बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक ओनली। नेक्स्ट, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। फिश का क्या था, 2 चैम्बर्ड, लेकिन ये क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड आर कोल्ड ब्लडेड। ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, सो ये भी कोल्ड ब्लडेड है, अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। दे हैव मॉइस्ट स्किन। बचपन में मेंढक वगैरह हमने पकड़ा हुआ, देखा हुआ, फील करा होगा, उनकी जो स्किन है क्या है, मॉइस्ट रहती है, चिपचिपी सी गीली टाइप रहती है। एंड ईयर इज प्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम। यहाँ पे आपको एक गड्ढे जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये यहाँ पे जो गड्ढे जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इस एरिया को हम कहते हैं टिम्पैनम। तो इनके पास ईयर नहीं होता है, यहाँ पे एक होल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद रहता है जिसे हम कहते हैं टिम्पैनम। हम इसको भी मार्क करेंगे प्री के लिए। सुनने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टिम्पैनम, जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा, फ्रॉग, टोड, न्यूट, सैलमेंडर। नेक्स्ट, क्लास रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल की अगर हम बात करें, इनकी खासियत क्या है, दे क्रीप एंड क्रॉल। क्रॉल का मतलब तो सबको पता ही होगा, रेंग के चलते हैं। अगर एनी ऑर्गेनिज्म दैट while moving if it drags its lower body, अगर पेट वाला हिस्सा अगर जमीन को टच करता है तो हम इसे क्रॉलिंग कहते हैं। एंड these organisms crawl। क्रीप का मतलब होता है जैसे डर की वजह से, आहट की वजह से अगर ये छुप जाते हैं तो हम इन्हें कहते हैं क्रीप। सो these organisms are characterized by creeping and crawling mode of locomotion. Next, they are found both in land and water। जैसे एम्फीबियन थे, बस ये भी वैसे ही हैं, जमीन पे भी पाए जाएंगे, पानी में भी पाए जाते हैं। Their body is covered with scales। सांप का एग्जाम्पल लेते हैं, सांप के बाहर वो केंचुली होती है। Similarly, their body is covered with scales. They are cold-blooded and have 3 chambered heart। जैसे फ्रॉग के केस में था या फिर एम्फीबियन के केस में था, ये भी वैसे ही है। इनके पास भी क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। एक ही एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, वरना रेप्टाइल में सारे रेप्टाइल्स के पास क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। एक ही एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। ये हमारे लिए प्री क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। एक ही एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा अगेन, स्नेक। स्नेक के पास हाथ पैर नहीं है, लेकिन बाकी सबके पास मौजूद है।
दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है, एंड दे आर ओवीपेरस, ओवीपेरस का मतलब होता है दे ले एग्स, वो अंडे देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल टर्टल, स्नेक एंड लिजर्ड। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स और ये जो एक्सेप्शंस यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, क्रोकोडाइल, स्नेक, इनको हम प्री के लिए मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास एव्स और बर्ड्स। अगर हम बर्ड्स की बात करें, दे आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स, हर जगह पाए जाते हैं। एयर में तो है ही, पानी में भी डक वगैरह है, स्वान वगैरह है, और जमीन पे भी है फ्लाइटलेस बर्ड्स जैसे कीवी हो गया, पेंगुइन हो गया। सो दे आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, उनके बॉडी की चारों तरफ फेदर्स मौजूद हैं, पंख मौजूद है, और उसकी वजह से वो उड़ भी सकते हैं। Four limbs are modified into wings and hind limbs are modified into claws. उनके जो हाथ वाले जो कह सकते हो लिम्ब है वो विंग में कन्वर्ट हो गया, और जो उनके हाइंड लिम्स हैं, पैर हैं, वो कन्वर्ट हो गए क्लॉ में, पंजों में कन्वर्ट हो गए। They possess beak, इनका जो माउथ है वो मॉडिफाई हो गया किसमें, बीक में, चोंच में। Their skin is dry and without sweat glands, इनके स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड नहीं है, मतलब इन्हें पसीना नहीं आएगा। वैसे आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पसीना आएगा तो फिर होगा कि इनके जो पंख आपस में चिपक जाएंगे, चिपकने की वजह से उन्हें उड़ने में दिक्कत आएगी। तो इसी वजह से नेचर ने क्या करा, उनके स्वेट ग्लैंड्स को हटा ही दिया है। Now their skeleton is made up of bones and usually long bones are hollow and filled with air cavities. इसका रीजन ये है क्योंकि बर्ड्स उड़ सकते हैं तो उनकी जो हड्डियां हैं वो खोखली रहती हैं ताकि वो आसानी से उड़ सके। अगर इनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ठोस हो जाएंगी, तो ये आसानी से उड़ नहीं पाएंगे, इनको दिक्कत आएगी। तो इसी वजह से नेचर ने इवोल्यूशन के दौरान इनकी हड्डियों को खोखला बना दिया ताकि वो आसानी से उड़ सके, उनका वेट कम हो सके। नेक्स्ट, देयर हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, जैसे ह्यूमंस में वैसे इनका भी हार्ट क्या है, 4 चैम्बर्ड है, एंड वार्म ब्लडेड, मतलब क्या है, वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। They are oviparous in nature, that means they lay eggs. यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। लास्ट क्लास मैमेलिया या फिर मैमल्स, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। रीजन भी हम भी इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। दे आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स, हर जगह पाए जाते हैं, पानी में भी है, व्हेल, जमीन पे तो हम हैं ही। एयर की अगर हम बात करें, बैट, चमगादड़, ठीक, तो दे आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट्स। Most unique characterized being presence of mammary glands by which young ones are nourished. Mammals की एक खासियत है, और इनका जो नाम है मैमिलिया भी यहीं से आया है। इनके पास क्या मौजूद है, मैमरी ग्लैंड्स मौजूद है। मैमरी ग्लैंड्स की वजह से क्या करते हैं, जो यंग वंस हैं उनको मिल्क प्रोवाइड करने में ये मैमरी ग्लैंड्स हेल्प करते हैं। They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running and climbing. चलने फिरने के लिए, मूव करने के लिए इनके जो हाथ पैर हैं वो मॉडिफाई होकर रखे हैं। स्किन इज कवर्ड विथ हेयर्स, किसी में कम ज्यादा है बट बॉडी की चारों तरफ हेयर मौजूद रहेगा। एक्सटर्नल ईयर्स आर प्रेजेंट एंड हैव डिफरेंट सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट इन जॉ। जो हमारे जबड़ों की बात करें, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जो 4 टाइप के जो टीथ हैं वो अलग अलग नंबर्स में सब में मौजूद है। ह्यूमन के लिए नंबर अलग रहेगा, टाइगर के लिए अलग रहेगा, डॉग के लिए अलग रहेगा, कैट के लिए अलग रहेगा। They have hard, dense bones. Birds और बाकी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में हमारी जो हड्डियां ज़्यादा ही मजबूत है, ठोस है, एंड स्ट्रॉन्ग मेमोरी एबिलिटी, हमारी याद रखने की जो एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से मैमेलिया जो है बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। सो विद दिस एग्जाम्पल्स वगैरह बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे। बैट, यहाँ पे आपको दिख जाएगा फॉक्स, कंगारू, रैट, बियर, फिर मैन, स्क्विरल, प्लेटिपस, डियर, पैंगोलिन, एलिफेंट, ये सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे फॉर मैमेलिया। मैमल्स को हम 5 मार्क का प्लस प्री के लिए इसको मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन दिख जाएगा बिटवीन वेरियस क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट। साथ ही साथ यहाँ पे इनका ब्रीफ इंट्रो भी दे रखा है, तो इसको भी आप जॉट डाउन कर सकते हो और इस तरह से इसको कंपेयर करते हुए आप पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। देखिएगा जो हमने क्लासिफिकेशन सीरीज पढ़ी थी, किंगडम के बाद फाइलम आया था, फाइलम के बाद क्लास, फिर क्लास के बाद आना तो चाहिए ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज वगैरह, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं करेंगे। रीजन बीइंग हम बस क्लास तक ही पढ़ते हैं, बाकी सारी चीजों पे डिटेलेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट ह्यूमन की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए।
देख लेते हैं हम किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। वी बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया। फाइलम क्या हमारा, कॉर्डेट, नोटोकॉर्ड है, दिस से कॉर्डेट। क्लास मैमेलिया, मैमेलिया का मतलब यहाँ पे रहेगा वी आर मैमल्स। फिर हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेट। प्राइमेट का मतलब होता है जो पेड़ वगैरह पे चढ़ सकते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइमेट्स। होमिनिडे का मतलब रहेगा जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर वो ह्यूमन जैसा है, 2 हाथ पैर, जैसे चिंपैंजी वगैरह हम होमिनिडे में आते हैं, 2 हाथ पैर हैं, खड़े होकर चल सकते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होमिनिडे। जीनस होमो, हमारा स्कल साइज जो है बड़ा है। सेपियन, एबिलिटी टू यूज टूल्स। तो इस क्लासिफिकेशन को हम याद रखें, हमारा किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, हमारा क्लास क्या है, हमारा ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। इस सीरीज को हम याद रखेंगे। With this, we are done with the topic of classification of organism और taxonomy. कल से नया टॉपिक शुरू होगा, टॉपिक वुड बी सेल और साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स। हैव ए गुड डे, टेक केयर।